नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं विपिन कुमार सिंह डेल्टा एकेडमी से अब आपके सामने उपस्थित हूँ एक 10th क्लास का चैप्टर लेके ए लेटर टू गॉड। इट इज रिटन बाय G.L. Finch। You know that faith can move the mountains. So in this chapter you will see the story of a farmer who had a great faith in God and how he changes his situation by his faith. There was a farmer named Lancho who was waiting for a raindrop from the ocean, from the sky, and his crops was really require raindrops, but there was no sign of rain. So once in the evening at the supper time, when he was eating food, and he saw a black clouds came, and it began to rain, and then the rain changes to the downpour, and there was a lot of rain, and it began to shower of hailstones there. So after that, all the crops was destroyed. The rain was too much. First of all, he was delighted that it was a rain, but after that, after some time, he felt that the rain had destroyed each and every part of his crop. But he was thinking that God would help him some way, because he had a great faith in God, and he was thinking that God would justify his labor. So he decided to write a letter to God. He went to the post office and wrote a letter to God for help, and his letter was read by the postmaster, and postmaster read the letter, and he decided to help Lancho. So Lancho demanded in his letter 100 pesos. Postmaster collected the money from his relatives and friends, and the collection was only 70 pesos. So Lancho, so he put that 70 pesos in envelope and sent that money at the house of Lancho. When Lancho saw the money, he thought that my God had sent me the 100 pieces, and these persons of post office employees are bunch of crooks, so they have taken my money. He thought that the post office employees were not good; they were dishonest people. That is why they have not given me the whole money as given by to God to me. So in this story, this is the summary of the story, and Lancho had a great faith in God. When all the crops was destroyed, he was just thinking only one thing: the help from God, because he knows that he was thinking that because God knew everything, whether the thing which is inside the conscience of the human being, मतलब भगवान वो चीज भी जानता है जो इंसान अपने अंतरात्मा में सोचता है। अंतरात्मा की जो एक सोच होती है उसको भी भगवान पढ़ लेता है। भगवान से मतलब कुछ छुपती नहीं है, ऐसा लैंचो का विश्वास था। और लैंचो को बिल्कुल भी ये रत्ती भर संदेह नहीं था कि गॉड उसकी हेल्प नहीं करेंगे। तो भगवान ने उनकी हेल्प की भी, क्योंकि पहले वो रेन ड्रॉप चाह रहा था कि बारिश हो जाए। बारिश होती है, और बारिश होने के बाद क्या होता है, इतनी बारिश होती है कि लैंचो का जो घर था वो एक हिल पे बना हुआ था, और हिल से वो पूरी पहाड़ी से पूरी जो वैली में उसके घाटी में खेत थे वो सब देख सकता था। तो उसने घाटी पर जाकर देखा तो नॉट इवन ए सिंगल पार्ट ऑफ क्रॉप वाज सोन टू हिम, एंड ऑल द क्रॉप वाज कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन, मींस हिज ऑल द क्रॉप वाज ड्रॉन्ड, हर उसकी पूरी फसल जो थी वो डूब गई थी। तो इस तरीके से लैंचो की फसल डूबने के बाद भी जब उसकी फैमिली पे एक संकट आ गया कि हाउ विल ही सर्वाइव द होल ईयर, एंड हाउ विल ही सो द नेक्स्ट क्रॉप, अगली बार फसल कैसे बोएगा। और पूरी साल जब फसल नष्ट हो गई तो अब उसके पास फसल भी नहीं खाने को, पूरी साल वो कैसे रहेगा। मतलब इन दोनों समस्याओं के होते हुए भी
he had the great faith in God and he asked help from God. उसने भगवान से ही सहायता मांगनी सोची. So he wrote a letter to God directly. As I have seen one movie. The movie name is Oh My God. In that movie, the same scene was created when the soap of a person, the person actor was Paresh Rawal. His soap was destroyed by some incident of natural incident, and so he demanded money from God. So in that case, he just make a case over God that you destroyed my shop, you have to pay the money. Just like Lancho had a faith in God and he was asking help from God for destroying his crop. और कहते हैं ना कि भगवान जो है किसी न किसी रूप में आते हैं मतलब हेल्प करने. भगवान गॉड नेवर कम्स डायरेक्टली टू हेल्प द पर्सन. ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. जो इंसान संसार में होता है उसी के रूप से जो है भगवान आता है, मतलब उसी रूप में आते हैं. तो दैट द पर्सन हु केम टू हेल्प लैंचो वाज द पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर केम एंड हेल्प Lancho. He collected the money from his relatives and friends and gave that money honestly to Lancho. But Lancho had such a faith in God that he was thinking wrong about the post office employees. He was thinking that these people are dishonest and they have taken my 30 pesos as he demanded 100 pesos, and he had a great faith in God. He was thinking that God has sent him the 100 pesos and 30 pesos has been taken by the post office employees. But he was wrong here, Lancho. He was thinking negatively about the post office employees because he had a great faith in God. भगवान में उसका बहुत अटूट विश्वास था, एक अतुलनीय विश्वास था लैंचो का भगवान में. और भगवान जो था वो किसी इंसान के रूप में ही मदद करता है. तो वो इंसान जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हेड पोस्ट मास्टर था, जो बहुत जॉयबल काइंड ऑफ नेचर था. मतलब because we can say this thing by this, when first of all the letter was taken by the postmaster and he took it to the head postmaster, and the postmaster at that time smiled. वो हंसा थोड़ा सा, और उसने जब लेटर को पढ़ा and the address having the only one word God, when he saw this thing he just decided to answer this letter. When he read the matter, when he read the content of the letter, he saw that to help the writer, it just not required a paper or ink, it required a money. So he decided to help him, and by his best effort he just collected 70 pesos. Okay, so this is the whole summary. I tried to give you the best explanation of this content. Now we will read this chapter line to line. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted माने कहते हैं बिखरे हुए, जो उधर बिखरे हुए होते हैं, मतलब उसको dotted बोलते हैं. With the flowers that always promised a good harvest. ये जो घर था मतलब वो लैंचो का पूरी इंटायर माने कहते हैं पूरी वैली में एक ही घर था. और क्रेस्ट माने कहते हैं चोटी मतलब जो सबसे छोटी चोटी थी, निचली चोटी थी, उसकी चोटी पर था. मतलब ये फ्रॉम द साइड, इसकी ऊंचाई से एक आदमी देख सकता था, रिवर देख सकता था, फील्ड देख सकता था ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई फसल थी, मतलब जो बिखरी हुई थी फ्लावर्स के साथ में वहां पर. दैट ऑलवेज, मतलब उसको देख के लगता था, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, मींस उसको देख के लगता था कि वो एक अच्छी फसल होने वाली है फसल में. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डॉन पावर और लीस्ट ए सोवर. अब उसको देख के लगता था फसल को, लैंड को देखा उसने, तो वहां पर सबको लग रहा था कि अब फसल को थोड़ा वाटर मिल जाए. ये उन दोनों की बात है जब इंडिया में जो क्रॉप सिस्टम था दैट वाज डिपेंड होली ऑन द मानसून ऑफ इंडिया. मतलब उस समय पे पूरी फसल जो है वो मानसून पे डेवलप करती थी. मतलब जो ट्यूबवेल और जितने एग्रीगेशन के एग्रीकल्चर भी साधन है वो उतने मौजूद वहां पर नहीं थे. थ्रूआउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. पूरी सुबह लैंचो ने कुछ नहीं किया बल्कि अपने खेतों को इंटीमेटली मानी कहते हैं बहुत गौर से, नजदीक से देखा उनको. बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उसको नॉर्थ ईस्ट से एट दैट टाइम ही वाज थिंकिंग दैट गॉड में सेंड सम रेन और डॉन पावर.
He was thinking about the rain. Now we are really going to get some water movement. The woman who was preparing supper, supper मानी कहते हैं रात्रि भोज, वो जब रात का खाना बना रही थी लेडीज, उस समय उसने कहा कि अब हमें निश्चित ही कुछ पानी मिलने वाला है. Replied, yes, God willing. हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as. We उस समय क्या था कि जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे, और लैंचो खाना खाने जा रहा था. उसकी वाइफ जो खाना बना रही थी, लैंचो हैड प्रेडिक्टेड माने कहते हैं घोषणा की, भविष्यवाणी की. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि बड़े बड़े पानी की बूंदें जो है गिरना शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वहां पे जो थे माउंटेन्स में बादल, बड़े बड़े जो बादल थे वो आते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताजा थी, मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब जो आदमी था, मतलब ये लैंचो जो था, वो घर के बाहर आ गया और वो केवल एक ही चीज महसूस कर रहा था कि क्या महसूस कर रहा था, रेन का मतलब अपनी बॉडी पर आनंद लेने के लिए बाहर आ गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेमेड, जब बाहर आया उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही है. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नई कॉइन्स हैं. ऐसा उसने क्यों कहा? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. उसने कहा कि जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं, जो छोटी सी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस की. बिकॉज द कलर ऑफ द रेन वाज मैचिंग विद द कलर ऑफ द कॉइन्स, कॉइन्स के कलर से मैच कर रहा था. सिल्वर कलर की होते हैं दोनों चीजें, तो वो इसलिए उसने कॉइन्स कहा. और सेकेंड थिंग, द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज मैचिंग विद द कॉइन. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in curtain of rain. और एक satisfied expression से उसने पकी हुई फसल के फूलों को देखा जो बारिश की चादर से ढक गए थे. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large heavy stones began to fall. उसने देखा कि मतलब मजबूत हवा आई और हवा के चलने के साथ वो सब हेल स्टोन थे वो सब जो है गिर गया. जो फसल थी वो गिर गई. जब फसल गिर जाती है तो नष्ट हो जाती है. मतलब आप देखते होंगे जैसे तूफान आंधी आती है, खेतों में फसल खड़ी होती है और अगर वो गिर जाती है तो वो नष्ट हो जाती है. These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब वहां पे ओले पड़ने लगे. अब वो बारिश मतलब गिर गई फसल और फसल के ऊपर से क्या ओले पड़ गया, मतलब पूरी फसल नष्ट हो जाएगी. तो जो लड़के थे वो फ्रोजन पर्ल्स मानी कहते हैं, उनको ओलों को इकट्ठे करने लगे. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब उस आदमी ने, लैंचो ने कहा कि अब बहुत बुरा हो रहा है, अब हमारी फसल नष्ट हो जाएगी अगर अब ओले पड़े तो. आई होप इट पासेस क्विकली. मैंने सोचा कि जल्दी से बीत जाए, जल्दी से. इट डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी नहीं बीता. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और पूरी 1 घंटे तक जो बारिश थी वो पड़ती रही. किसमें पड़ती रही? द गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर जो थी बारिश लगातार होती रही. द फील्ड वाज व्हाइट, खेत सफेद था. एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढका हुआ है, नमक से. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी नष्ट हो गई. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे, जो फूल थे, वो पौधों से गायब हो गए. लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा, सोल मानी कहते हैं आत्मा, लैंचो की आत्मा सैडनेस, दुख से भर गई, दुख से. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया. एंड सेड टू हिज सन्स, उसने अपने लड़कों से कहा, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, उसने कहा कि टिड्डियों का एक झुंड हम इस पे लग जाता, मतलब टिड्डी की बीमारी लग जाती हमारी फसल को, तो हमें ज्यादा बच जाता. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, this year we will go have no corn. That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There is no one who can help us. We will go hungry this year. अब लैंचो ने जब फसल की तरफ देखा तो उसने अपने लड़कों से कहा कि अगर टिड्डियों की बीमारी हमारी फसल को लग जाती तो हमारे पास ज्यादा बच जाता. और इसने तो, रेन ने हमारे ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी. अब हम इस साल क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, और who can help us, हमें कौन सहायता कर सकता है. We will go hungry this year, हम इस साल क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे मतलब. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन
उस एकांत घर में, निर्जन घर में, घाटी में जो लोग रहते थे, उनको केवल एक ही होप थी, भगवान से सहायता की। डोंट बी सो अपसेट इवन थॉ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लैंचो की ये लाइन बहुत बढ़िया है। लैंचो ने मतलब अपनी पूरी फैमिली को उम्मीद बनाई कि डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग बिकॉज नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, भगवान सबको खाने पीने का प्रबंध करता है। दैट्स व्हाट दे से, ये वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lenzo thought of only his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through that, पूरी रात लेंचो एक ही बात में सोचता रहा कि भगवान बहुत बड़ी चीज होती है, जिसकी आंखें इंसान के कंसाइंस मानी कहते हैं, अंतरात्मा में भी देख लेती है झांक कर, जो उसके होता है, मतलब जो वो किसी को नहीं बताता है, उस बात को भी भगवान जो है देख लेता है। Lenzo was an ox-often man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लैंचो वैसे किसान था और जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। The following Sunday, अगले रविवार, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mall. It was nothing less than a letter to God. अगले रविवार को वो सुबह के समय डेब्रेक बनेगा, जैसे दिन निकलता है, दिन निकलते ही पहुंच गया और वहां पे उसने क्या किया, एक लेटर लिखा और उसको मेल में डाल दिया। ये कुछ नहीं था बल्कि गॉड के लिए पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने लिखा भगवान को कि भगवान मुझे आपकी सहायता चाहिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि रेन ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है, हेल स्टॉर्म रेन ने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है। He wrote to God on the envelope, और एनवेलप को उसने एक एड्रेस डाल दिया, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उसने अंदर डाला, एंड स्टिल टू वर्ड went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और पोस्ट ऑफिस जाता है, उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉइज था, he saw the letter and take it to the head postmaster. हेड पोस्टमास्टर ले गया उसको। He was laughing because the address of God never exists in this world. Never in his career as a postman had he known that address. उसने इस तरह कोई एड्रेस नहीं देखा था। तो पोस्टमास्टर जो था एक फैट था, मोटा व्यक्ति था, एमिएबल था। एमिएबल मानी कहते हैं थोड़ा खुश मिजाज व्यक्ति था, मजाकी टाइप का आदमी था। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा एकदम से, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को डेस्क पे फेंक दिया। कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। सो उसने तुरंत कहा कि मुझे भी ये विश्वास चाहिए, इस आदमी के इतना भरोसा है इस गॉड में, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज था वो एक प्रकार से सेकेंड रैंक व्यक्ति था। जो फाइव रैंक व्यक्ति होते हैं, जो पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं वो, तो उसने उस चीज को समझा कि इस आदमी ने जो लिखा है ये कितने भरोसे से लिखा होगा, इस आदमी का भरोसा बना के रखा जाना चाहिए भगवान में। सो ही टुक द डिसीजन टू हेल्प दैट मैन। मींस लैंचो, ही जस्ट थॉट टू हेल्प लैंचो। He didn't know the story behind it, but he just saw the faith of writer in that letter and he decided to help him. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. जब राइटर ने उस लेटर को पढ़ा, उसने सोचा कि इसका अगर मैं हेल्प करना चाहता हूं तो मुझे इंक और पेपर से कोई चीज ज्यादा चाहिए होगी, मतलब। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे की डिमांड की। He himself gave part of his salary. उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और कई दोस्तों ने उसके जो है एक चैरिटी एक्ट के रूप में उसे पैसे दे दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the former only little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. इसलिए उसने जितने पैसे इकट्ठे करे रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, उसमें उसके बिहाफ पे he was able to collect more than half. More than half means 70 pesos he collected, not 100. Lencho demanded 100 pesos, but he collected 70 pesos. So he put their money in an envelope and sent it to
लेंचो एंड मेक ए सिग्नेचर गॉड, मीन्स गॉड करेस्पॉन्डेंस कर रहा है, लेंचो को शो कर दिया उसने। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, तो उसे भरोसा था कि आज मेरा जवाब आ गया होगा, और उसने लेटर के बारे में पूछा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो खड़े होकर देख रहा था दूर से कि मैं भी देखूं कि मतलब लेंचो को, वो आदमी जब गॉड का लेटर देखेगा तो क्या एक्सप्रेशन आएगा उसके चेहरे पर, इसलिए वो डोर पे खड़ा हो गया और उसके चेहरे को देखना चाहता था। मतलब उस कंटेनमेंट मानी करने संतोष, उस संतोष के भाव को, सेटिस्फेक्शन के भाव को देखना चाहता था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो ने पैसे एनवलप खोला, लिफाफा देखा, तो लेंचो ने थोड़ा सा भी शक नहीं किया कि ये क्या है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास था कि भगवान निश्चित ही उसकी मदद करेगा। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो नाराज हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने कहा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता अपने पत्र देने में, मतलब, और उसने मतलब जो उसने रिक्वेस्ट किया है भगवान उसको देगा। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की में चला गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लाया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने चेहरे की बहुत ज्यादा रिंकलिंग मानी कर त्योरी चढ़ाकर। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसने अपने आइडियाज लिखना शुरू कर दिए। When he finished, जब उसने पूरा कर लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked, खिड़की पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा, उसको लिख मानी कर थूक लगाया, and then affixed, और उसको एफिक्स किया एनवलप पे विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक मतलब हाथ मारा अपना और उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण उसका लेटर मेल बॉक्स में गया, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसा मैंने आपसे पूछा था, फॉर 70 पीसेस रीच मी, मेरे पास केवल 70 पीसेस आ पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है पैसे की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे खाना खाने के लिए और अगली फसल बोने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, उसने कहा ये पैसा लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमान लोग हैं वो, उनके थ्रू मुझको लेटर मत भेजना। मैं आपको दिखाऊंगा रिवीजन नोट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर इस चैप्टर में क्या क्या है। पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है, लेंचोज होप ऑफ गॉड रेन टू हैव ए गुड क्रॉप, लेंचो की उम्मीद थी। रिकैप करते हैं चैप्टर के लिए जल्दी से, वरना वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो लेंचोज की होप थी गुड रेन की, टू हैव ए गुड क्रॉप। इट रेन्स बट द रेन सून चेंजेस इनटू हेलस्टॉर्म, रेन होती है लेकिन रेन जल्दी से हेलस्टॉर्म में बदल जाती है, तूफान में बदल जाती है। लेंचो हैज फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का बहुत भरोसा था भगवान में। लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखता है लेंचो हेल्प के लिए। लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पीसों, और लेंचो उससे कहता है कि 100 पीसों उसको भेज दो, जिससे कि वो अपनी अगली फसल बो सके, और जब तक फसल तैयार हो तब तक वो अपना समय व्यतीत कर सके। पोस्टमास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज लाफ एट लेंचोस लेटर टू गॉड, पोस्टमास्टर और अदर एम्प्लॉयज जो है पोस्ट ऑफिस के, वो सब हंसते हैं लेंचो के गॉड के एड्रेस देखो कि बिकॉज गॉड द एड्रेस ऑफ गॉड नेवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एक्यूरेटली, बट गॉड लिव्स इनटू द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, भगवान हर एक के दिल में रहता है और हर एक इंसान की मदद करता है, तो सच्चे मन से उसको याद करता है। जैसे द्रौपदी ने याद किया था भगवान को सच्चे मन से, तो भगवान ने उनकी कितनी बड़ी मदद की थी। पोस्टमास्टर डिसाइड्स टू लेंचो इन हिज प्रॉब्लम, लेंचो पोस्टमास्टर डिसाइड किया कि उसकी लेंचो प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करेंगे वो। पोस्टमास्टर वांट्स एवरी एम्प्लॉयज टू हेल्प इन हिज नोबेलिटी। पोस्टमास्टर कलेक्ट्स 70 पीसोस एंड गिव्स द एनवलप टू लेंचो हिमसेल्फ, पोस्टमास्टर ने 70 पीसोस इकट्ठे किए और वो लेंचो को एनवलप देता है। लेंचो गेट्स एंग्री आफ्टर गेटिंग 70 पीसोस अमाउंट एज ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस, लेंचो इस बात से नाराज हो जाता है कि उसको 70 पीसोस पहुंचे, 100 पीसोस उसने डिमांड किए थे जबकि। Lencho calls the employees of post office a bunch of crooks as he thinks that they have stolen the rest of amount. Lencho पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को bunch of crooks कहता है, जैसे कि वो सोचता है कि जो they have stolen the rest of amount, उन्होंने उसके मतलब जो है चोरी कर ली पैसे की। Lencho again
writes a letter to God and send him rest of the money. और लेंचो ने सोचा कि मतलब लेंचो ने भगवान को एक लेटर और लिखा, भगवान से कहा कि जो मेरा बाकी पैसा है उसको मेरे पास जल्द से जल्द भेजो, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो ये पूरी स्टोरी आपने देखी, समझी, इसके बाद यही समझ आया होगा कि ये स्टोरी जो है एक आदमी के अटूट विश्वास और श्रद्धा को दिखाती है भगवान में, कि अगर भगवान के में बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत है तो आप मतलब कोई भी मतलब कभी भी निराश नहीं हो सकते, चाहे आपके पास कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए। जैसे कि आपने देखा, अगर आदमी का बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो जाएगा तो कभी जीवन में वो खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान का जो साथ है वो हमें ऐसी मजबूती देता है कि हम अपने मजबूती से अपने जीवन में खड़े रहें। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपको चैप्टर समझाने का, और मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये चीज चैप्टर समझाया हुआ। जय गुरुदेव, नमस्कार, सत श्री अकाल।